Yeah, good morning. So today we will discuss class 9, chapter 1, rational and irrational numbers. And you can go through this video and we will do it in parts. And you can stop and you can repeat the video so that you have better understanding. And any questions, I would request you to kindly share your questions with me in the comment section. And also do not forget to like, subscribe. Okay. So the complete number system, it is divided into two parts, in two type of numbers. First would be imaginary numbers. So imaginary numbers, we have examples like -4, -5. Okay, so that are your first is your imaginary numbers. So these are example of imaginary numbers, square root of negative numbers. Okay, and then we have real numbers. Okay, real numbers are denoted by letter R. Okay, and they are further divided into rational numbers denoted by letter Q and irrational number denoted by letter Q. So rational numbers examples are like -8, 0, 2, 5 upon 8, etc. And irrational numbers would be √5, √3, minus √7, 3 √2. Okay, so after imaginary numbers comes your rational numbers and real numbers, which are further divided into rational numbers and real numbers. So your real numbers are denoted by the letter R, and they are further divided into rational numbers and irrational numbers. और जो रैशनल नंबर्स के एग्जांपल्स हैं जैसे -8, 0, 2 एंड यू हैव 5/8, तो ये आपके एग्जांपल्स हो गए रैशनल नंबर्स के. वेरस इरेशनल नंबर्स के एग्जांपल है जैसे √5, -√7. ओके, तो ये आपके इरेशनल नंबर्स के एग्जांपल हो गए. इसके अलावा जो है हमारा जो ये फर्दर डिवाइडेड होते हैं रैशनल नंबर्स, जो हम डिनोट करते हैं इनको क्यू से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और ये फर्दर डिवाइडेड होते हैं इंटीजर्स जिनको हम आई या जी से रिप्रेजेंट करते हैं, और नॉन इंटीग्रल रैशनल्स. ओके, तो रैशनल नंबर जो हैं आपके फर्दर डिवाइड होते हैं इंटीजर्स, denoted by I or Z, and then we have other non-integral rationals. अब जैसे हम इंटीजर्स लेते हैं, इनको डिनोट करते हैं आई या जी से, तो ये हो गया आपके -2, -1, 0, 1, 2 एंड सो ऑन. तो इसमें आपकी नेगेटिव भी है वैल्यूज़, 0 भी है, 1, 2 भी है, तो ये आपके इंटीजर्स हो गए. और जो नॉन इंटीग्रल रैशनल्स होते हैं जैसे आपके फ्रैक्शंस हो गए, -5/8, 8/15, 2, 1/3 मिक्स्ड नंबर, तो ये आपके एग्जांपल्स हैं.
तो इंटीजर्स हम डिनोट कर रहे हैं आई या जी से, -2, -1, 0, 1, 2, और नॉन इंटीग्रल रैशनल्स हो गए आपके -5/8, 8/15, 2, 1/3। और जो आपके इंटीजर्स है फर्दर डिनोट कर सकते हो आप इनको नेगेटिव इंटीजर्स जैसे -3, -2, -1 और 0, और नेचुरल नंबर्स होते हैं आपके स्टार्टिंग फ्रॉम 1, 2, 3 एंड दे आर फर्दर डिवाइडेड इनटू होल नंबर्स. Whole numbers are numbers from 0, 1, 2. इसके अलावा रेशनल नंबर्स क्या होते हैं? रेशनल नंबर्स को हम डिनोट करते हैं Q से, और इट इज़ any number which can be expressed as a by b, where a and b are both integers and b is not equal to 0. तो इनको अगर आपको लिखना है तो रैशनल नंबर इज एनी नंबर q इक्वल टू a upon b, whereas a, b belong to integers and b is not equal to 0. तो रैशनल नंबर्स का अगर आप जैसे एग्जांपल लो तो हम आगे आगे वी विल हैव क्वेश्चन, सो वी विल गो थ्रू देम. सो अगर a और b में कोई कॉमन फैक्टर नहीं होता अदर देन 1, तो a एंड b को प्राइम्स होते हैं. इसके अलावा आपका जो है एवरी इंटीजर एंड एवरी डेसिमल नंबर इज अ रैशनल नंबर. -a upon b is same as a upon -b. And two rational numbers are equal if a by b is equal to c by d. Also, a upon b is greater than c by d if a into d is greater than b upon into c. So, any two rationals a by b is equal to c by d if a into d is equal to b into c. और सिमिलरली अगर आपका यही इक्वल की जगह हम आपका ग्रेटर देन या स्मॉलर देन कर दें तो a अपॉन b इज ग्रेटर देन c अपॉन d इफ a इंटू d इज ग्रेटर देन b इंटू c. और फॉर एनी टू रैशनल नंबर्स a and b, a plus b by 2 is also a rational number which lie between a and b. So if a is greater than b, then a is greater than a plus b upon 2 is greater than b, and if a is less than b, then a is smaller than a plus b by 2 which is smaller than b. इसके अलावा we'll do one sum. Which of the rational number 3 upon 5 and 5/6, 5/7 is greater? And can you insert any rational numbers between 3 rational numbers between 3 upon 5 and 5/7? Okay, so we'll try to solve this question. So basically rational number हैं दो, 3/5 and 5/7. तो इसमें हमें चेक करना है कि कौन सा नंबर ग्रेटर है. तो इसको ग्रेटर करने के लिए हम इनका जो डिनोमिनेटर सेम कर देंगे. तो 5 और 3 को हम 7 से मल्टीप्लाई करेंगे और 7 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 को भी 5 से मल्टीप्लाई करेंगे. तो आपकी इक्वेशन आ जाएगी 3/5 इज इक्वल टू 3 इंटू 7 और 5 इंटू 7. सो दिस इज 21/35. और नेक्स्ट है आपका 5/7. इसका भी हम डिनोमिनेटर सेम करेंगे. तो 5 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे और 7 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे. तो आपका न्यूमरेटर में आ गया 25 और नीचे 35. तो पहला जैसे 3/5 हम कन्वर्ट किया तो 21/35 आया, और 5/7 हमने कन्वर्ट किया तो 25/35. तो 25/35 इज ग्रेटर देन
21/35. Therefore 5/7 is greater than, this implies 5/7 is greater than 3/5. तो हमें डिनोमिनेटर सेम करना है, तो हमें पता चल जाएगा कौन सा बड़ा है। अब इनके बीच में हमें अगर तीन नंबर कोई ऐड करने हैं तो बहुत सिंपल है। जैसे 21 है अपॉन 35 है 25/35, तो 21 के ऊपर एक ऐड किया 22/35, दूसरा नंबर ऐड किया 20+2 23/35, और तीसरा नंबर ऐड किया 21 + 3 24/35। इस तरह से तीन नंबर हम लोग ऐड कर सकते हैं बिटवीन 21/35 and 25/35. So this is part 1. So we'll try to have small parts which you can go through. और आपके कोई भी डाउट है प्लीज़ शेयर विद मी इन कमेंट्स एंड लाइक सब्सक्राइब। ओके, थैंक यू।